Hello guys, you watching Study Funda. I welcome you all in today's video. In today's video, we are going to discuss about top 100 current affair MCQs for CDS1 2021 examination. This video will be the part 7 of this video series. We already covered question number 1 to question number 60. In this video, we will discuss about question number 61 to 70. So let's begin with the question number 61. In which of the following state the researchers have discovered a species of bioluminescent mushroom? So the options are Sikkim, Assam, Tamil Nadu, and Meghalaya. Take 5 second time and tell me the answer of this question in your comment section. So the correct answer for this question will be your मेघालय guys. मेघालय स्टेट के अंदर जो है आपको आपके रिसर्चर को जो है एक बायोल्यूमिनेस मशरूम जो है बेसिकली देखने को मिली है। ये मशरूम जो है रात को आपको की जो है शाइन करती है। इसका नाम एक साइंटिफिक दिया गया है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन से स्टेट के अंदर जो है ये मशरूम आपको रिसर्चर्स ने इसको फाइंड आउट किया है। तो कौन सा स्टेट है? मेघालय स्टेट है। इतना बस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 सेज नासा एंड स्पेसएक्स जॉइंट मिशन रेजिलियंस हेडेड फॉर। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जुपिटर, ऑप्शन बी मार्स, ऑप्शन सी विनस एंड ऑप्शन डी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। टेक 5 second time and tell me the answer of this question in comment section. Guys, the answer will be answer of this question will be your option D, International Space Station. Okay. So NASA and SpaceX का जो एक जॉइंट मिशन है जिसको that was headed for the International Space Station. Okay, it has taken an international crew of 4 astronauts to the International Space Station. The event has become the first successful launch on NASA certified commercial human spacecraft system in the history. Okay, so ये आप याद रखिए. Next question is your question number 63. What is the name of the offshore patrol vessel launched by Indian Coast Guard? The options are option A Vijay, option B Varuna, option C Vigraha, option D Neeraj. Take 5 second time and tell me the answer of this question. So the correct answer for this question will be your option C Vigraha. So the vessel in one of the following, among the series of 7 vessels that were designed and built for the Indian Coast Guard. These vessels have been built and designed by the Larsen and Toubro Shipbuilding under the Make in India initiative. तो कंपनी के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं तो कि विग्रह जो है किस कंपनी ने जो है इसको डिजाइन और डेवलप किया है, तो वो कंपनी है लार्सन एंड टूब्रो। और किसके लिए किया है? वो किया है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। और ये एक बेसिकली ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. Which campaign was launched on the occasion of Ganga River Dolphin Day? Option A is Dolphin Yojana. Option B Mera Pani Meri Dolphin. Option C My Ganga My Dolphin campaign. Option D Save the Blue Dolphin. Please take 5 second time and tell me the answer of this question in the comment section. Correct answer for this question will be your option C, guys. My Ganga My Dolphin campaign. This is very important. This in this CDS1 2021 examination, there might be a question from this particular topic. So the answer will be My Ganga My Dolphin campaign. This campaign was launched by the National Mission for Clean Ganga, the Wildlife Institute of India, and the Forest Department. गंगा रिवर डॉल्फिन डे इज ऑब्जर्व ऑन 5 अक्टूबर एवरी ईयर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मे भी पूछ ले कि गंगा रिवर डॉल्फिन डे जो है किस दिन होता है आपका, ठीक है। उसके बाद अ, जो गंगा रिवर डॉल्फिन आपकी नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है आपका, ये भी आपको याद रखना है, बस इतना से ही पूछेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 65. सितवे पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये इंपॉर्टेंट है, काफी न्यूज में था, तो मे भी क्वेश्चन पूछ लें। बांग्लादेश, म्यांमार, सिंगापुर एंड ईरान। देयर आर 4 ऑप्शंस। ये आसान सा क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। Correct answer for this question be your option B, Myanmar. So guys, India and Myanmar has agreed to operationalize the Sitwe port in the Rakhine state by the first quarter of 2021. The decision was taken after a 2-day long visit of Chief of Army Staff General M.M. Naravane and Foreign Secretary Harshvardhan Shringla to Myanmar. ठीक है,
अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे कि किसने क्या क्या किया था, सिर्फ ये पूछ सकते हैं आपका सितवे पोर्ट किस कंपनी का है, तो सितवे पोर्ट किस कंट्री का है, तो ये है आपका म्यांमार का है सितवे पोर्ट। और ये आपका ये वाली जो लोकेशन है आपकी, ये पर्टिकुलर ये लोकेशन, ये आपका रखाइन प्रोविंस पड़ता है आपका म्यांमार के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट पोर्ट और देख लेते हैं, काफी न्यूज में जो रहते हैं आपके। छबार पोर्ट है आपका, ये ईरान का है आपका। उसके बाद आपका पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पड़ता है यहीं पे आपका। एक यहाँ पे कराची पोर्ट पड़ता है पाकिस्तान का। और इंडिया की तरफ अगर देखोगे तो आप कंडला पोर्ट है इंपॉर्टेंट, मुंबई पोर्ट है। और इधर म्यांमार वाली साइड में जो है सितवे पोर्ट है आपका। तो ये चार पांच पोर्ट है, अलग अलग नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 66। विच नेशन हैज अप्रूव्ड द डेथ पेनल्टी फॉर रेप केसेस एज द मैक्सिमम पनिशमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। 5 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपके अनुसार। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश ने जो है डेथ पेनल्टी को जो है मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पे जो है देना शुरू कर दिया है। दे हैव अप्रूव्ड द डेथ पेनल्टी एज द हाईएस्ट और मैक्सिमम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर रेप केसेस एंड सेक्सुअल वायलेंस एज पर द अमेंडमेंट इन द वुमेन एंड चाइल्ड रिप्रेशन प्रिवेंशन एक्ट। तो ये याद रखना, आपका नेबरिंग कंट्री है तो इंपॉर्टेंट है, तो आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द इंपोर्ट ऑफ दिस आइटम टू प्रमोट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड कट इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स इन इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी पूछा जाए एग्जाम में। ऑप्शन ए इज योर कार्स, ऑप्शन बी एयर कंडीशनर, ऑप्शन सी मोबाइल फोन, ऑप्शन डी लैपटॉप्स, ठीक है। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, बताइए इसका आंसर आपके अनुसार क्या हो सकता है, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका करेक्ट आंसर क्या है। कौन सा ऐसा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिसका जो है इंपोर्ट कंट्री ने बंद कर दिया है टू बूस्ट द इंडियन साइड ऑफ प्रोडक्ट, जो इंडिया प्रोडक्ट उनको जो है बना सकता है, तो बाहर से मंगाने की अब जरूरत नहीं है। तो कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा एयर कंडीशनर गाइस। Government of India has banned the import of air conditioners to promote domestic manufacturing and to cut the import of non-essential items in India. This step is seen as the part of Atmanirbhar Abhiyan to strengthen the domestic market. आपको याद रखना है, और ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस बार पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 इज योर who who has become the new prime minister of New Zealand by winning the general elections। में भी आ जाए एग्जाम में, इसलिए रिस्क नहीं लेना है कोई भी। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन ए है जूडिथ कॉलिंस, विंस्टन पीटर एंड ब्रेंटन टेरेंट एंड जगिंडा एड्रन। चार ऑप्शंस हैं, एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए, 6-7 सेकंड का टाइम लीजिए, उसके बाद बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। गाइस जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी आपका जकिंडा एड्रन, ठीक है। ये जो है हाल ही में जो है पिछले साल 2020 में प्राइम मिनिस्टर बनी है न्यूजीलैंड की फॉर द सेकंड टाइम। इंपॉर्टेंट है, मे भी एग्जाम में पूछा जाए, काफी न्यूज में रहता है न्यूजीलैंड, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 69। विच एक्ट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970, पंचायती राज एक्ट 1989, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्ट 1937 एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1993। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी पंचायती राज एक्ट 1989। और इंडियन गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव किया है पंचायती राज एक्ट को 1989 को जम्मू और कश्मीर के लिए। दिस स्टेप विल हेल्प एस्टेब्लिशिंग थ्री टायर डेमोक्रेसी इन द स्टेट लाइक द रेस्ट ऑफ द नेशन। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर की मर्जी से जो है पंचायत वगैरह काम करती थी, लेकिन अब यूनियन टेरिटरी होने के बाद जो है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर है कि उसको जो है थ्री टायर में जो है डालने की बात जो है लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज वीडियो इज योर क्वेश्चन नंबर 70। विच तेलंग सॉरी, यहाँ पे रिवर प्रोजेक्ट आएगा गाइस। विच रिवर प्रोजेक्ट हैज बीन स्टेटेड अंडर द वायलेशन ऑफ लॉ बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, या फिर यहाँ पे तेलंगाना भी आ सकता है, विच तेलंगाना प्रोजेक्ट आएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन ए बिरूपा रिवर बैंक प्रोजेक्ट, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, रामेश्वरम फ्लड रिलीफ प्रोजेक्ट एंड प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है आपका कालेश्वरम लिफ्ट प्रोजेक्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जस्ट अ सेकंड, ये पिछले वाला उसका हो गया, यहाँ पे इसको कट कर दिया। आपको जो स्लाइड मिलेगी वो आपको ठीक करके देंगे हम उसमें, डोंट वरी। कालेश्वर प्रोजेक्ट जो है लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, और ये वर्ल्ड का बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट होने वाला है।
और इसको मेन जो इसमें चीज़ है वो आपको देखना है, वो है आपका रिवर, कौन सी रिवर के ऊपर है, गोदावरी रिवर के ऊपर है, आपको जस्ट इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो मे भी आ जाए कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो है कौन सी रिवर के ऊपर है, तो गोदावरी रिवर के ऊपर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा वो है जो इसमें ये जो मिस्टेक है यहाँ पे, ये हम हटा के आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ इसका, तो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इस वीडियो में दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, हार्डली 400-500 लोग सिर्फ वीडियो को देखते हैं, इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी थोड़ा सा बुरा लगता है, बट स्टिल कोई बात नहीं। जितने लोगों ने वीडियो को देखा है, ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किया है। प्लीज़ वीडियो देख के अगर आपको पसंद आए तो कमेंट जरूर करना, कमेंट से जो है मोटिवेशन मिलेगा। और आज हो गई है आपकी 4 फरवरी, आज ही के दिन आपके सारे के सारे रिमेनिंग लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। ये थी आपकी 7th वीडियो थी आपकी, हमने 70 तक क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, और रात 9 या 10 बजे तक जो है आपकी बाकी की तीनों वीडियो जो आएंगी 71 से लेके 100 तक, वो भी हम जल्दी से जल्दी अपलोड कर देंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी फन। थैंक यू सो मच।